তোমার গায়ে আমি এক্ষুনি একটা ব্লেড দিয়ে কেটে দেবো। দ্বিতীয়বার কাটতে গেলে তুমি আমাকে কাটতে দেবে? দেবে না। वीमेंस कॉलेज सिलचर है। यहाँ पर हमने एक नियम बना रखा है कि हम लोग बुकेस नहीं देते। हम लोग जो अतिथिगण आते हैं उनको हम लोग छोटा सा पौधा प्लांट सेपलिंग उसका हम लोग उपहार देते हैं। एक आप गिफ्ट भी देते हैं ना, तो वो बुके भी रेपिंग प्लास्टिक से रहेगा। आज का दिन सिर्फ एक दिन नहीं, एक जिम्मेदारी है। आज अर्थ डे का दिन हमें याद दिलाता है कि यह धरती सिर्फ हमारी नहीं, हम भी उसके हैं। तो चलिए चल के बात करते हैं कुछ विशेष लोगों से और जानते हैं कि उनका पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे के ऊपर क्या राय है। নমস্কার, আমি রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম শিলচরের স্বামী গণধীশানন্দ। পৃথিবী দিবস মানে আমরা তো এই পৃথিবীর ওপর জন্মগ্রহণ করেছি। পৃথিবী আমাদের মাতা। সে মাতার যদি কষ্ট হয় তখন সন্তানদেরও কষ্ট হওয়া দরকার, কিন্তু আমরা নিজেরাই মাতাকে কষ্ট দিচ্ছি। বিশেষ করে এই পরিবেশটাকে এত দূষণ করছি। যদি কিছুদিন আগের দিকেও তাকিয়ে দেখি তাহলে এই পৃথিবীর ওপর কত গাছ, কত রকমের জীবজন্তু আমরা সব আস্তে আস্তে ধ্বংস করে দিচ্ছি। এর ফলে কি হচ্ছে? মায়ের কষ্ট হচ্ছে। আর আসল কষ্টটা তো পরে আমাদের ওপরেই আসবে, আমাদেরকেই ভোগ করতে হবে। তাই এই পৃথিবী দিবসে আমি চাইব গাছ লাগানো হোক, পলিউশন যেসব হচ্ছে সেগুলোর দিকে আমরা নজর রাখি, যেন পলিউশন না করি। এইগুলো বিশেষ ব্যাপার। পৃথিবী মাতা আমাদেরকে তার কোলে আশ্রয় দিয়েছেন, আর আমরা তাকে যথেচ্ছাচারিত করে নষ্ট করছি, কতভাবে নষ্ট করছি। সেই নষ্টের ফল তো আমাদের ওপরই নেমে আসবে। সেই জন্যে চারিদিকে দেখলে দেখা যায় বন্যা কত বেড়ে গেছে, ভূমিকম্প বেড়ে গেছে, তারপরে পলিউশনের ফলে রোগ জীবাণু কত বেড়ে গেছে, আমাদের কত রকমের রোগই সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যদি নেচারটা ঠিক থাকতো, মাকে আমরা মায়ের মতো সম্মান দিয়ে পূজা করতাম, গাছের দিকে নজর দিতাম, তাহলে এগুলো আজকের যুগে আসতো না। তাই আমার আজকের অভিমত, আমরা যেন সবাই গাছ লাগাই। আর কত রকমের পলিউশন আছে, শুধুমাত্র যে মাটির পলিউশন তা নয়, সাউন্ড পলিউশন আছে, তারপরে আরও অনেক রকমের পলিউশন আছে। সব পলিউশন থেকে আমরা যেন মাকে রক্ষা করতে পারি, এটা আমাদের নিজেদের জন্যই করা কর্তব্য। সবার কাছে আমার এই আবেদন, আপনারা সবাই এই পৃথিবী মাকে সুন্দর করে তুলুন। পৃথিবী দিবস উপলক্ষে আমার সবার কাছে এটাই আবেদন। এভরি ইয়ার অত ডিফরেস্টেশন হয়, অত ল্যান্ডস্লাইড হয়, আরও অনেক কিছু হয়। তো আপনার মতে কি, মানে মানুষরা এটা ইম্পর্টেন্স জানে তবুও অত গাছ কাটা কেন হয়? দেখো, আমাদের দুটো মন আছে, মনের স্তর আছে। একটা চেতন মনের স্তর, একটা অবচেতন মনের স্তর। এই চেতন মনের স্তরে আমি জানি যে গাছ কাটলে নষ্ট হবে, এটা মানে ফার্ম নয়। এটা আমরা সব কিছু জেনেও খারাপ কাজ করছি। যদি এটা সত্যি সত্যি আমি জানতাম এবং এটা যদি আমি অনুভব করতাম, তোমার গায়ে আমি এক্ষুনি একটা ব্লেড দিয়ে কেটে দেবো। দ্বিতীয়বার কাটতে গেলে তুমি আমাকে কাটতে দেবে? দেবে না। তা আমাদের যদি সত্যি সত্যি মানে অনুভব করতাম যে এর ফলে আমার কষ্ট হচ্ছে, আমাদের সবার কষ্ট হচ্ছে, সে কষ্টটা আমরা বুঝিই না, একদম বুঝি না। এই গাছ কাটছি আমার জন্যে, এটা যে পরবর্তীকালে কি ভীষণভাবে আসবে, শুধু আমার নয়, আমার পরবর্তী যেসব জেনারেশন আসবে তাদের জন্য আসবে, এসব আমরা বুঝিই না। আমার নিজের স্বার্থ ছাড়া আমি আর কিচ্ছু বুঝি না। আর সেই স্বার্থটা অত্যন্ত নিচু স্বার্থ। যদি স্বার্থ সত্যি সত্যি বুঝতাম, তাহলে তো আমি আমাকে রক্ষা করার জন্য গাছ লাগাতাম, পৃথিবীকে সুন্দর রাখতাম, সবার সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করতাম, যাতে এই পৃথিবীটা সুন্দর হয়। সেটা আমরা বুঝিই না। যদি বুঝতাম, এটা করতাম না। हेलो सर, गुड इवनिंग। आप Good एक बार evening. अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम सुजीत तिवारी है और मैं सिलचर वीमेंस कॉलेज का अभी प्राचार्य यानी प्रिंसिपल का दायित्व में हूँ।
वैसे मैं फिजिक्स का यानी भौतिकी का छात्र हूँ, उसको ही पढ़ता हूँ, जानने का कोशिश करता हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ। आप सभी का स्वागत है आज के दिन में। सर जैसा कि हमें पता है आज 22 अप्रैल है यानी वर्ल्ड अर्थ डे, लेकिन सबको इसके बारे में नहीं पता है। तो आप अगर हमारे ऑडियंस को थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए तो अच्छा होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। आज 22 अप्रैल है और 22 अप्रैल को जैसे आपने बताया आज धरित्री दिवस, वो इसको हम लोग हिंदी में बांग्ला में बोल सकते हैं, यानी वर्ल्ड अर्थ डे है। तो अर्थ हम सभी का है, हम लोगों ने अपने अपने घरों को बांट रखा है, देशों को बांट रखा है, लेकिन हमारा जो मूल निवास है, मूल घर जो है वो ये पृथ्वी माता है। ये पृथ्वी को बचाने के लिए, उस पृथ्वी को के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और जो इसको नुकसान पहुंचा रहा है तो उसके बारे में सबको सचेतन यानी सजाग करने के लिए, और खाली सजग होने से नहीं होगा, उसमें जो एक्शन है उस एक्शन को इंस्पायर करने के लिए, क्योंकि थ्योरी में हम लोग बहुत सी चीज़ पढ़ते रहते हैं। सो टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट और टू स्टिमुलेट और टू मोटिवेट एक्शन फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस अर्थ। तो जैसे आपने पूछा कि इसका शुरुआत हम लोग गेलोड नेल्सन बोल के एक अमेरिकी जो एनवायरमेंटलिस्ट थे उनसे शुरू हुआ और 1970 से आज के दिन तक ये चला आ रहा है, क्योंकि मूल जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ से सब कुछ, इसी मिट्टी से हम लोग बने हैं और इसी मिट्टी से सब कुछ, इसका मिट्टी, इसका पानी, इसका हवा जो हम सबको बचाता रहता है, उसके बारे में थोड़ा सोचना, जानना, टू क्रिएट अवेयरनेस, और जानने के बाद उसको अपने हरकत में लाना, एक्शन में लाना, ताकि हम लोग सचमुच में कुछ कर सके बोलने से आगे जा करके। इसीलिए आज का ये दिवस मनाया जाता है। सर आपको क्या लगता है ग्लोबल वार्मिंग हमारी धरती को कैसे अफेक्ट कर रहा है? ग्लोबल वार्मिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो शब्द है, ग्लोबल हमारे पृथ्वी ग्लोब है और वार्मिंग यानी गर्म होना। तो गर्म कैसे होता है? एक जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी आप लोग बात बोलते हैं, तो हमारे चारों तरफ रेडिएशंस हैं। तो सूरज से जब रेडिएशंस हमारे पास आते हैं, तो सूरज से रेडिएशन आने के बाद जो चारों तरफ जो मटेरियल्स है, जो गैसेस हैं, वो उनको एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ एक हिस्सा उसका रिफ्लेक्ट करके वापस जाता है। तो कुछ एक गैसेस ऐसे हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैस उस रेडिएशन को जब सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो एब्जॉर्ब करने के बाद उसका एनर्जी थोड़ा कम जाता है। तो कुछ गैसेस हैं जो उसमें अटक जाते हैं, फिर वापस जाने का उसमें एनर्जी बचता नहीं है, तो वो ट्रैप्ड हो जाते हैं। तो एक अगर हम लोग ग्रीन हाउस बनाएं तो इसी तरह गैसेस ट्रैप्ड हो जाएंगे और टेम्परेचर उसका बढ़ता रहेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से गर्मी बढ़ेगा। इसी तरह पूरा धरा का, पूरा पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग ना हो तो पृथ्वी इतना ठंडा हो जाएगा कि यहाँ लाइफ एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता। लेकिन उसका एक सीमा है, और वो सीमा का जो बैलेंस है, वो बैलेंस हमारा नेचर, हमारा प्रकृति बना के रखता है। लेकिन हाल फिलहाल में जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जो बियॉन्ड द स्केल है, जो अनबैलेंस एक्टिविटीज़ है, इसने क्या किया है, उस संतुलन को गड़बड़ा दिया है। और वो बैलेंस गड़बड़ाने के कारण अभी क्या हो गया है कि जो ये ग्रीन हाउस गैसेस है, इनका एमिशन इतना बड़ा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग होने से हमको पता है कि ज़्यादातर पानी, हमारा पीने का पानी तो बहुत ही कम है, लेकिन ज़्यादातर पानी समुंदर और ग्लेशियर्स में है। तो ग्लेशियर्स अगर पिघलने शुरू कर जाएंगे तो पानी का स्तर इतना बढ़ जाएगा। अभी पिछले 2-3 साल पहले हम लोगों ने सिलचर में देखा, लेकिन हर तरह ये जमा हुआ पानी का असर था, लेकिन हर तरह अगर बर्फ़ पिघल के पानी, लिक्विड का परिमाण बढ़ जाएगा तो इसका असर सबको भोगना पड़ जाएगा। तो एक छोटा सा ग्रीन हाउस से लेकर के ग्लोबल वार्मिंग तक का मुझे लगता है ऐसा ये चेन है। जैसा कि आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेंशन किया, लेकिन सबको इसके बारे में नहीं पता है, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ग्रीन हाउस इफेक्ट को मैंने जैसे बताया कि सबको पता नहीं है, लेकिन अभी बढ़िया चीज़ है कि स्कूल्स में एकदम छोटे छोटे क्लासेस के सिलेबस में भी ये है। थ्योरी तो हमको पता है, लेकिन हम लोग, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग कार्बन एमिशन को कमा सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन अगर बढ़ेगा, CO6 का अगर एमिशन बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा। अभी CO6 का हम लोग बोलेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बात बोलेंगे, तो कहाँ पर है? हम लोग अगर फ्रीजिंग एलिमेंट का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसको ठंडा करने के लिए जो सब चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है, ये CO6 का एमिशन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बढ़ता है, और वो क्या करता है, आपका ये सब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे दूसरे गैसों को भी ज़्यादा ट्रैप करेगा और
उसका एमिशन बढ़ता जाएगा। तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम और ज़्यादा दायित्वशील बनना चाहिए, हमको पेड़ लगाना चाहिए ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाले, नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करने वाले जो सिस्टम नेचर का है, प्रकृति का है, वो बने और उसका एमिशन को हम लोग रिड्यूस कर सकें। तो हम लोग जब एफोरेस्टेशन करेंगे, पेड़ लगाएंगे और पेड़ काटना बंद करेंगे, तब जाके ये ह्यूमन एक्टिविटी पर जब लगाम लगेगा, बैलेंस रहेगा, तो मुझे लगता है तब जाके इस पर कुछ रोक लग सकता है। और उसके लिए ज़रूरी है लोगों का जानना, और वो जानना ही, जैसे मैंने पहले भी बताया, आज का दिवस का जो पहला बिंदु है लोगों को इसके विषय में जानना, अपने क्लाइमेट को जानना, पर्यावरण को जानना। हमारे वीमेंस कॉलेज सिलचर है, यहाँ पर हमने एक नियम बना रखा है कि हम लोग बुकेस नहीं देते। हम लोग जो अतिथिगण आते हैं उनको हम लोग एक जो पौधा, छोटा सा पौधा, प्लांट सेपलिंग, उसका हम लोग उपहार देते हैं। और आपने देखा होगा हमने कोशिश किया है कि इसको प्लास्टिक फ्री कैंपस रखने का। और क्योंकि हम लोग जो खुद करते हैं ना, इतना तो हम लोग दूसरों को बोल सकते हैं, उसके लिए नहीं कर सकते, लेकिन अपना जो स्वयं का काम है वो हम लोग कर सकते हैं। और हर एक आदमी अगर स्वयं का काम करना शुरू कर दे, जैसे जब 22 का जो बाढ़ आया था उसका मैंने जिक्र किया, 22 का बाढ़ में जो जमा हुआ पानी, उसका एक बहुत बड़ा कारण था। अभी हम लोग जितना हम लोग काम करेंगे, लोग ज़्यादा है, लोग ज़्यादा रहेंगे, लोग तो रहेंगे, उसको हम लोग कमा नहीं सकते, लेकिन लोग रहेंगे तो आपका जो वेस्ट होगा ये भी ज़्यादा हो जाएगा। प्लास्टिक ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग प्लास्टिक का यूज कम कर सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक हमने यहाँ बैन कर रखा है। तो ऐसे हर लोग अगर कोशिश करें कि हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर देंगे। एक आप गिफ्ट भी देते हैं ना, तो वो बुके भी रैपिंग प्लास्टिक से रहेगा। तो हम लोग कहीं भी मतलब उससे प्लास्टिक से बचने का डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितना भी उपाय हो उससे बचने का कोशिश करना चाहिए। यहाँ हमने इस कॉलेज में, इस महाविद्यालय में प्रयत्न किया है। और सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स सबसे पहले आते हैं, जो विद्यार्थी और स्टूडेंट्स हैं वही आगे आके इसमें प्रतिभागी बनते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और उनके कामों से इसको हम लोगों ने प्लास्टिक फ्री बनाने का प्रयत्न किया है। और बाकी जो भी काम, क्योंकि स्टूडेंट्स ही सब काम करते हैं, और वही उनको बता दिया गया है कि हम लोग पौधा देंगे, बुके नहीं देंगे, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह से जो नागरिक कर्तव्य है, हम सभी लोगों का नागरिक कर्तव्य है, उसका अगर हम लोग पालन करें तो हमारा जो कर्तव्य है वो भी हो गया हमारे देश के प्रति। क्योंकि हमारा देश बहुत ज़्यादा जनबहुल देश है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसको तो देश के प्रति भी कर्तव्य हो जाएगा, समाज के प्रति हो जाएगा। और हमारा जो सबसे बड़ा घर गृह हम लोगों ने बोला ये धरती माता है, उसके प्रति भी जो हमारा कर्तव्य है, सब कुछ हमको, हवा, पानी, मिट्टी, खाना सब यहाँ से मिल रहा है। और उसके लिए हमारा अगर एक्शन जो है, हमारा काम जो है, वो अगर थोड़ा नियंत्रित हो जाए, हर काम में हम लोगों ने छोटा छोटा काम से शुरू करके प्लास्टिक कवर ना दे करके दूसरा कवर दे के शुरू करें, इस तरह का प्रयत्न अगर करें तो छोटा कदम आखिर में जाके जब एकजुट होता है तो बड़ा बन जाता है। वह मुझे लगता है बड़ा बदलाव ला सकता है। मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगा। इस विशेष दिन में आप लोगों ने हमारे कॉलेज में आप लोग आए, महाविद्यालय में आए, और ये आपने कुछ प्रश्न पूछा, कुछ बातें किया, लेकिन इससे भी जागरूकता फैलती है। तो जो जागरूकता वाला 4 बिंदु मैंने बताया, जागरूकता फैलती है, और ये भी मुझे लगता है कि समाज को बहुत मदद करने जाएगा, क्योंकि जानना भी जरूरी है, जानने का आवश्यकता है। धन्यवाद।